चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। लेट्स स्टार्ट। ओके, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस कीजिएगा गाइस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो 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 सेक्शंस वगैरह देखे थे उनको एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अबे गुड मॉर्निंग तो बोलो। एक बार मैं लिंक शेयर कर दूं, 2 मिनट्स मेरे को थोड़ा सा समय देना। लिंक लिंक मतलब नालक लोगो, शेयर टेलीग्राम फास्ट ट्रैक। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने कंप्लीट किया था अकाउंट्स ऑफ द कंपनी चैप्टर, बहुत ही ज्यादा वाहियात चैप्टर था जीवन के अंदर, ठीक है। तो एक बार उसके सभी सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आर यू रेडी गाइस? लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ अकाउंट्स ऑफ कंपनी क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सभी सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं लाइन से, क्योंकि आज हमारा कंपनी लॉ वैसे ही खत्म होने वाला है, तो एटलीस्ट आपके सभी सेक्शन रिवाइज रहेंगे, ठीक है। चलो तो लाइन से सभी सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं सब जन, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। रेडी? लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इसमें क्या सेल नहीं है क्या? स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया? कुछ तो भी होते रहता है जिंदगी में। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। हाँ, ओके, लाइन से सभी सेक्शन ले रहे हैं तो कृपया बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 3 किसका है बोले एक बार उसे? फॉर्मेशन। 4 MOA, 5 AOA, 6 Act to override, 7 incorporation, 8 NPO, 9 effect of registration, 10 effect of MOA AOA, 11 नहीं है, 10 है commencement of business, 12 registered office, 13 amendment of MOA, 14 amendment of AOA, 15 amendment copies, all copies, 16 name, 17 inspection, 18 conversion, 19 subsidiary shall not hold shares in holding company, 20 service, 21 authentication, 22 bill of exchange, promissory note, 23 kinds of issue, 24 है क्या? नहीं। 25 offer document, 26 content, 27 variation, 28 offer for sale, 29 demat, 30 advertisement, 31 shelf, 32 red herring, 33 breach, 34 criminal, 35 civil, 36 inducement, 37 action by affected person, 38 नहीं है, 39 allotment, 40 listing, 41 नहीं है, 42 private placement, 43 kinds, 44 nature, 45 number, 46 certificate, 47 voting, 48 variation, 49 call, 50 advance call, 51 dividend, 52 premium, 53 discount, 54 sweat equity shares, 55 preference shares, 56 transfer and transmission, 57 fraud, 58 refusal, 59 correction, 60 publication, 61 alteration, 62 further issue, 63 bonus issue, 64 filing with ROC, 65 unlimited to limited, 66 reduction, 67 prohibition on buyback, 68 process of buyback, 69 Burberry, 70 contravention, 71 debenture, 72 nomination, 73 acceptance of deposit from members, 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76 acceptance of deposit from public, जिन्होंने लेक्चर देखे 76 है contravention, फिर 77 registration of charge by company, 78 registration of charge by holder, 79 changes in charge, 80 knowledge, 81
रजिस्टर नहीं है। 82 satisfaction of charge by company। 83 satisfaction of charge by holder। 84 liquidator। 85 नहीं है। 86 powers of ना 86 contravention। 87 powers of CG। फिर 88 रोम। 89 रोबो। 90 investigation of beneficial owner। 91 closure। 92 annual return। 93 top 10 shareholder return। 94 registered office। 95 evidence। 96 AGM। 97 AGM by NCL। 98 EGM by 9999 100 EGM। 101 ordinary notice। 102 explanatory statement। 103 quorum। 104 chairman। 105 proxy। 106 restriction on voting। 107 hand। 108 electronic। 109 poll। 110 postal। 111 circulation। 112 president or government's proxy। 113 corporate proxy। 114 ordinary special resolution। 11S special notice। 116 छोड़ा आता adjournment एक और खतरा। 117 filing of resolution। 118 minutes। 119 inspection। 120 electronic। 121 filing। 122 applicability of chapter to the OPC। फिर dividend। 123 declaration of dividend। 124 separate account। 125 IEPF। 126 abeyance। 127 within 30 days। clear है सब। फिर 128 maintenance of accounts। 129 maintenance of financial statement। 130 reopen। 131 revision। 132 NFRA। 133 powers of CG accounting standard। 134 board report। 135 CSR। 136 inspection। 137 filing and 138 internal audit। 139 सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 4 रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी। 5 रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। 6 फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी। 7 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। 8 कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। 9 से लेके 11 रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्लियर है सब। उसके बाद में सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1 रिमूवल। सबसेक्शन 2 रेजिग्नेशन। 141 डिस्क्वालिफिकेशन। 142 में रेम्यूनरेशन। 143 आई अलाउ पावर्स एंड ड्यूटीज। 144 इनवैलिड सर्विसेज। 145 साइनिंग। 146 कम्युनिकेशन ऑफ जनरल मीटिंग। 147 कॉन्ट्रावेंशन। 148 कॉस्ट आउट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। एओसी याद है? एओसी याद है? एक बार जाओ जरा एओसी याद करो सबके सब। एओसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग का एक बार देखिए। एओसी लाइव स्ट्रीम में सबको क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब जन ज्वाइन कर लिया प्रॉपर्ली? सेक्शंस याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं लाइव स्ट्रीम में? बताओ नालायक लोगों मेरे को जरा जीवन में।
चलो मुझे एक बार एओसी बोल दो। एओसी 1, एओसी 2, लिस्टेड कंपनी डिस्क्लोजर्स, यस और नो? एओसी 3, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल, साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ किसका? बैलेंस शीट एंड P&L। ठीक है, नेक्स्ट वाला फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद आरओसी एंड 5 की 4 ही है। ठीक है, फाइन। सो एओसी को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, आज हम जाने वाले हैं ऑडिट चैप्टर के ऊपर, और ऑडिट चैप्टर के अंदर सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं, पूछो क्या, जल्दी से पूछो क्या, 141। क्या देखने वाले हैं? 141। किसका है बेटा 141? डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। सबसे पहले जो दो पेज है, पेज नंबर 10.4 एंड पेज नंबर 10.5, दोनों कट कर दीजिए। ये बोलिए सर, इसमें बहुत मजा आता है। पेज नंबर 10.4 एंड 5 दोनों कट कर दीजिए। पुले के पुले, कुछ भी मत खोदना। जैसे उसने तुम्हारा काटा उसी प्रकार से तुम पेज का काटो। हाँ, हो गया 10.4, 10.5, बोलो हाँ या ना? कट गया। 10.6 भी काट डालो, 10.7 भी काट डालो। 8 मत काटना, ना लायक लो। ऊपर का फर्स्ट हाफ काट डालो 10.8 का, पूरा मत काटना। ठीक है, ये रूल्स वाले प्रोसेसेस है जो ऑडिट चैप्टर में ऑडिटर सिलेक्शन के लिए काम में आते हैं। किसकी सिलेक्शन के लिए काम में आते हैं? ऑडिटर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिएगा, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब हम स्ट्रेट अवे जंप करने वाले हैं सेक्शन नंबर 141 में, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। एक सुंदर चार्ट मैंने बनाया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। किसकी तरह? क्या 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 है क्या क्या है? आ जाओ नालायक लोग, मेरी तरह बोले भिखारी। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। लास्ट को सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 141 जो है वो बच्चों 4 सब सेक्शंस में डिवाइड होता है। कितने सब सेक्शंस में? 4। हम देख रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब कौन ऑडिटर बन नहीं सकता। ऑडिटर बनना किसको अलाउड नहीं है। अब 4 सबसेक्शंस यहां पे जो दिए हैं उसको एक एक करके देखते हैं। सबसेक्शन 1 जो है 141 का, वो कहता है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड वर्ड का मीनिंग वैसे समझते हो? चार्टर्ड वर्ड का मीनिंग होता है भाड़े पे लेना। तो तुम क्या कर रहे हो? चार्टर्ड मतलब नालायक लोग, भाड़े का अकाउंटेंट नहीं बोलते, मैं हूं जीवन में। चार्टर्ड वर्ड का दूसरा भी मीनिंग होता है विद द स्पेशल राइट्स। सो इट इज अकाउंटेंट विद द स्पेशल राइट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? So section number 141 subsection number 1 says that only a chartered accountant or a chartered accountant firm can only be the auditor. Are you understanding? Subsection number 2 says if there is a firm, then majority of the partners of that firm need to be the chartered accountant in the practice. Are you understanding? Everybody, yes or no? Third subsection we are going to see afterwards, and fourth subsection depends on the third subsection. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सिंपल सी बात, थोड़ा अपने लाइन पे आते हैं। अरे पहला सबसेक्शन बोल रहा है कि पहला सबसेक्शन बोल रहा है कि भैया ओनली सीए और सीए फर्म कैन बी द ऑडिटर। दूसरा सबसेक्शन बोल रहा है कि अगर आप सीए फर्म बना रहे हो या कोई भी फर्म बना रहे हो तो मेजॉरिटी पार्टनर्स इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, तो ही फर्म आपका बैलेंस शीट P&L साइन कर सकता है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो सकता है कि आप फर्म किस किस के साथ बना सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको मेंशन कर दूं कि किस किस के साथ आप फर्म बना सकते हो। तो कोई भी सीए किसी भी दूसरे सीए के साथ, सीएस के साथ, सीएमए के साथ, लॉयर के साथ,
एडवोकेट के साथ, एक्चुअरी के साथ, आर्किटेक्ट के साथ एंड इंजीनियर के साथ फर्म बना सकता है, बीकॉम के साथ नहीं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखिएगा, जिसमें अगर ऐसे फर्म में मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो ही सिर्फ वो फर्म ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार सर ना, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? नीचे दूसरी बात, अब बेसिकली अगर देखा जाए तो एडिशनली सेक्शन 141 कहता है कि सिर्फ सीए फर्म या तो फिर सीओपी जो होल्ड कर रहे हैं वो, जो बंदे डिस्क्वालिफाइड नहीं है एज पर सेक्शन नंबर 141, वो यही लोग सिर्फ आपका ऑडिट करवा सकते हैं। तो अब सबसेक्शन नंबर 3 के डिस्क्वालिफिकेशंस कौन से हैं? सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन है बॉडी कॉर्पोरेट, क्लॉज नंबर ए, सबसेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर ए। सो हम हैं कंपनीज एक्ट में ऑडिट चैप्टर में सेक्शन नंबर 141 में सबसेक्शन नंबर 3 में क्लॉज नंबर ए में, और जो ये कहता है कि भाई साहब अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकता। पर बॉडी कॉर्पोरेट के तो बहुत मीनिंग होते हैं, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट का कंपनी भी मीनिंग होता है और एलएलपी भी होता है। हालांकि एलएलपी तो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है, जैसे अर्न्स्ट एंड यंग, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉइट्स, ये आज के डेट में इंडिया में कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करते हैं तो एज एलएलपी साइन करते हैं। तो एक बात आपने याद रखना कि बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड नहीं है, इसका मतलब एलएलपी अलाउड नहीं है ऐसा नहीं है, एलएलपी साइन कर सकता है, कंपनी साइन नहीं कर सकती। इसलिए आपने देखना कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ऑडिट रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करती है जो ऑडिटर है। क्लियर है? पहले ये हुआ करता था कि केपीएमजी, EY, डेलॉइट्स एक्सेट्रा ये कंपनीज थी और ये इंडिया में कोई भी रिपोर्ट साइन नहीं करती थी। ये इंडिया में जब रिपोर्ट साइन करती थी तो वो साइन करती थी ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन पर्सन, मतलब इंडियन पर्सन उनके बिहाफ पे साइन करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं डेलॉइट्स कंपनी का जो इंडियन फर्म है जिसके साथ टाइप है दैट इज कॉल्ड एज एसआर बाटली बॉय एंड कंपनी। ठीक है? तो डेलॉइट्स अगर किसी कंपनी को ऑडिट कर रहा है तो एसआर बाटली बॉय एंड फर्म विल साइन द ऑडिट रिपोर्ट। भले लेबलिंग ब्रांडिंग पूरा डेलॉइट्स का होगा बट साइन विल बी गिवन बाय एसआर बाटली बॉय एंड कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं चलेगा, एलएलपी चल जाएगा। क्लॉज नंबर ए। क्लॉज नंबर बी, कंपनी का एग्जिस्टिंग कोई एम्प्लॉय या तो फिर ऑफिसर है, अगर कंपनी का कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफिसर है तो ऑब्वियसली वो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। ठीक है? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज और ऑफिसर को हम क्यों अलाउ करेंगे? हमें ऑडिटर इंडिपेंडेंट चाहिए। क्या चाहिए बोले एक बार उसे? इंडिपेंडेंट। तीसरा, कोई भी एम्प्लॉय या ऑफिसर का कोई भी एम्प्लॉय ऑफिसर या फिर पार्टनर है। ठीक है? मतलब कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय ऑफिसर है, उसका कोई भी एम्प्लॉय ऑफिसर या पार्टनर है। मतलब समझो दर्शन इस्पात लिमिटेड या वाव बियर्स का मैं एम्प्लॉय हूं, मेरा कोई दूसरा एम्प्लॉय है प्राइवेटली या मेरा कोई पार्टनर है दूसरे फर्म में, लेट्स से विजू भैया, तो ये ऑडिटर नहीं कर सकते। ये क्या नहीं कर सकते बोले एक बार? ये ऑडिट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है सबको? दैट इज क्लॉज नंबर कौन सा बोले एक बार उससे? सी। क्लॉज नंबर डी डेंजरस वाला डिस्क्वालिफिकेशन है और ये बहुत काम का है, एग्जाम में मैक्सिमम सवाल इसके ऊपर पूछे गए हैं। इसके अंदर 3 आते हैं। ठीक है? 3 आते हैं। कोई भी ऑडिटर हिमसेल्फ, ए मतलब ऑडिटर, कोई भी उसका रिलेटिव, आर मतलब रिलेटिव, कोई भी उसका पार्टनर, पी मतलब पार्टनर, ARP। ठीक है? ARP कोई भी ऑडिटर रिलेटिव पार्टनर, ये किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी में अगर शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है? मतलब आप अगर किसी के, मैं अगर वाव बियर्स के अंदर लिमिटेड के अंदर अगर शेयर होल्डिंग रख रहा हूं तो मैं उसको ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। ना ही मेरे रिलेटिव रख रहे हैं तो कर पाऊंगा, ना ही मेरे पार्टनर रख रहे हैं। विजू भैया आप मेरे पार्टनर है समझो फर्म में, उन्होंने वाव बियर्स के अंदर कोई शेयर होल्ड करके रखे तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? पर यहां पे एक एग्जामिशन है, रिलेटिव को 1 लाख तक का एग्जामिशन दिया है। फॉर एग्जांपल मेरे मॉम डैड, मेरी वाइफ या फिर मेरे कोई भी सिस्टर वगैरह, ये वाव बियर्स के अंदर 1 लाख तक के फेस वैल्यू वाले शेयर होल्ड कर रहे हैं तो मैं ऑडिट कर सकता हूं। 1 लाख से ऊपर अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो मैं ऑडिट कर नहीं सकता। क्लियर है? दूसरा, अगर आप इंडेक्टेड हो कंपनी को 5 लाख रुपीज या उससे ज्यादा, आप एज ऑडिटर या आपका रिलेटिव या आपका पार्टनर, अगर आप इंडेक्टेड हो कंपनी को तो ऐसे सिचुएशन में आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअली एप्लीकेबल है, 5 लाख टुगेदर नहीं कि मैं, मेरे सभी रिलेटिव्स, मेरे सभी पार्टनर सब मिलकर 5 लाख रुपए। इट इज नॉट मटेरियल, तो दिस इज इंडिविजुअल। अगर मेरा कोई रिलेटिव है 5 लाख से ज्यादा डेट है और 5 लाख से ज्यादा कोई भी इंडेक्टेडनेस, व्हाट इज इंडेक्टेडनेस? इंडेक्टेडनेस का मतलब यहां क्या लिया जाएगा? मतलब ऑडिटर रिलेटिव या पार्टनर को कंपनी को पैसे देने हैं या कंपनी को ऑडिटर रिलेटिव या पार्टनर को देने हैं? किसको क्या देने हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। हाँ है, पहला कि ऑडिटर रिलेटिव पार्टनर ने कंपनी को देना है, हाँ है। दूसरा, कंपनी ने इनको देना है। तीसरा, दोनों ने एक दूसरे को देना है। या चौथा, किसी को कुछ देना ही नहीं है।
व्हाट इज इंडेक्टेडनेस? कंपनी को पैसे देने चाहिए इनको, ये इंडेक्टेडनेस, या इन्होंने कंपनी को देने चाहिए, ये इंडेक्टेडनेस? बोलो, जोर से बोलो। एक बार इससे रिगार्डिंग क्लॉज रीड करके देखो। आपके बुक के अंदर क्लॉज नंबर डी में सब क्लॉज नंबर 2 होगा, चेक करो। क्लॉज डी में सब क्लॉज नंबर 2 दिख रहा है सबको? दिशा सो बोलो एक बार फटाफट बोलिए। सो कौन किसको इंडेक्टेड होना चाहिए? कंपनी ने पैसे इनको देना है या इन्होंने कंपनी को देना है? आगे बेसिक इसके तरफ कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। इंडेक्टेडनेस बोथ साइड का कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात एक बात याद रखना, बट ऑडिट में जब आप जाओगे सेकंड ग्रुप में तो आपको हो सकता है एक स्पेसिफिक किसी साइड का व्यू दिया जाए डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड्स, लेकिन कंपनी लॉ के लिए ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। ऑडिट में जो वहां पढ़ाएगा वहां पे, यहां जो पढ़ाया यहां पे। समझ में आया सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर नो। नीचे इंडेक्टेडनेस के बाद गारंटी श्योरिटी है। अगर इन लोगों ने कंपनी को गारंटी, कंपनी के बिहाफ पे गारंटी श्योरिटी दिया, मतलब कंपनी ने लोन वगैरह लिया है और उन्होंने कंपनी के बिहाफ पे गारंटी श्योरिटी दिया, या इन्होंने लोन लिया है कंपनी ने गारंटी श्योरिटी दिया और ये गारंटी श्योरिटी 1 लाख से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 1 लाख। तो ऐसे सिचुएशन में आपका बंदा ऑडिटर बन नहीं सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार सुनना, ये चीज को आपने याद रखना। तो डेंजरस डिस्क्वालिफिकेशन में 3 आ रहे हैं। पहला है शेयर होल्डिंग, दूसरा है इंडेक्टेड और तीसरा है गारंटी और श्योरिटी। यह होने के बाद में अगर ई में कोई पिक्यूनरी रिलेशन या स्पेशल बिजनेस एग्जीक्यूट किया जा रहा है, पिक्यूनरी रिलेशन या क्या बोले बात उसे स्पेशल बिजनेस, तो ऐसे सिचुएशन में आप वहां पे ऑडिटर नहीं बन सकते। समझो आप कंपनी के मेजर क्रेडिटर हो, डेटर हो, लेंडर हो, बोरोवर हो, या आप कंपनी के साथ में मेजर सप्लायर हो सकता है आप इंडेक्टेड नहीं हो क्योंकि सब कैश में सेटल किया जाएगा, पर अगर आप मेजर गुड सप्लायर हो तो ऐसे सिचुएशन में आपने वहां पे ऑडिटर बनना नहीं चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। एफ में अगर कोई रिलेटिव है, देखो जो आपका क्लॉज नंबर सी था ना कि एम्प्लॉय ऑफिसर का कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय अलाउड नहीं है, उसी प्रकार एफ है। एफ में बोला गया है एम्प्लॉय ऑफिसर का कोई रिलेटिव है। हालांकि जो एफ वाला क्लॉज है वो सी में भी कंबाइन किया जा सकता था कि एम्प्लॉय ऑफिसर का कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय या रिलेटिव, ये यही बोला जा सकता था, पर उन्होंने क्लॉज एफ जबरदस्ती बाहर निकाला। तो क्लॉज एफ में बोला है कोई भी रिलेटिव है एम्प्लॉय ऑफिसर का, कंपनी के एम्प्लॉय ऑफिसर का कोई भी रिलेटिव, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। फिर क्लॉज जी जो आता है, देखिए एक बार सभी क्लॉज मुझे बोलो। पहला वाला कौन सा बोलो एक बार? बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा एम्प्लॉय और ऑफिसर है डिस्क्वालिफाइड। तीसरा एम्प्लॉय ऑफिसर का कोई एम्प्लॉय या पार्टनर है तो। चौथा डेंजरस डिस्क्वालिफिकेशन में 3, उसके अंदर शेयर होल्डिंग, इंडेक्टेडनेस। अच्छा रिलेटिव को शेयर होल्डिंग कितना अलाउड है? 1 लाख। इंडेक्टेडनेस कितना? 5 लाख। गारंटी श्योरिटी कितना? 1 लाख। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में ई में स्पेशल बिजनेस, पिक्यूनरी रिलेशन, और एफ के अंदर क्या किया है? रिलेटिव। क्लियर है? जी के अंदर 2 दिए गए हैं, 2 लिमिट्स है। पहले तो आपका ऑडिटर कहीं दूसरी जगह पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। फटे की बात ही अगर आपको बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आप कहीं एम्प्लॉय हो तो आपको सीओपी मिलेगा ही नहीं। इंस्टीट्यूट जब आप सीए बन जाते हो तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली अब सीएस और सीएमए की बात यहां पे नहीं चल रही है क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें। सो सीए इंस्टीट्यूट आपको नॉर्मली सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता ही नहीं है अगर आप कहीं ऑलरेडी एम्प्लॉय हो तो, और आपको सीओपी दी और आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो तो आपका सीओपी कैंसिल हो जाएगा, सरेंडर करना पड़ेगा, यहां तक कि मेंबरशिप भी जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। तो ये चीज को याद रखना। सो अगर आपका एम्प्लॉयमेंट है, क्या है? जोर से बोलो एक बार, एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सीओपी मिलेगा ही नहीं, तो आप ऑडिट कर सकते ही नहीं हो। दूसरी वाली बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट को एक पर्सन कर सकता है, वो है 30। जोर से बोलो कितना कर सकता है? बोलो एक बार 30। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ या ना। तो अब 30 जो ऑडिट्स आप मैक्सिमम कर सकते हो उसके अंदर क्या क्या काउंट किया जाएगा? तो 30 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। 20 की लिमिट्स आपको जो दी गई है वो 20 की लिमिट कंपनीज एक्ट ने दी है और उसके ऊपर 10 ग्रेस ऑडिट आईसीआई ने बोले हैं।
ठीक है। इंस्टीट्यूट में 10 ग्रेस ऑडिट बोले हैं, पर मेन जो लिमिट इंस्टीट्यूट की है, कंपनीज एक्ट की है, वो कितने बोले एक बार 20, और 10 ग्रेस ऑडिट्स कितने दिए है, किसने दिया है, आईसीआई। और 20 के लिमिट्स में क्या क्या आएगा, पब्लिक प्राइवेट 100 करोड़ के ऊपर, गवर्नमेंट 100 करोड़ के ऊपर, स्मॉल ओपीसी नॉर्मली यहां पे नहीं आता है, और जो ये 3 कंपनी छोड़ के जो भी बचते हैं वो सब 10 में आ जाएंगे। ठीक है, पर 10 के ऊपर आप कोई भी मतलब एक्स्ट्रा 10 मतलब टोटल 30 के ऊपर आप कोई भी ऑडिट ले नहीं सकते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो सर ना। मुझे एक बात बताओ, टैक्स ऑडिट कितने कर सकते हो आप, हाँ टैक्स ऑडिट कितने कर सकते हो, अबे कितने कर सकते हो, 60। मेरे को ये करना है, ये मैं पैसा कमाऊंगा, पर मेरे को टैक्स ऑडिट की लिमिट ही नहीं मालूम, ये तो पैसा कहां से कमाऊंगा। नालायक दर्शन सर तो बाद में देने वाले तिल को, नालायक लोग बेकार। सो टैक्स ऑडिट की लिमिट कितनी होती है, 60, कंपनी ऑडिट की 30, मतलब जिंदगी के अंदर 90 ऑडिट तो लिखे हुए हैं, समझ में आ रहा है, 90 ऑडिट्स तो लिखे हुए हैं, उसके ऊपर जो नहीं काउंट होते वो अलग। ये स्टैट्यूटरी लिमिट में ब्रांच ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, समझ में आ रहा है, इंटरनल ऑडिट, ये सब कैलकुलेट नहीं होता, वो एक्स्ट्रा, समझ में आ रहा है, स्काई इज द लिमिट, फावड़ा नहीं जेसीबी, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, शुरू हो जाने का। नेक्स्ट वाला एच के अंदर, क्लॉज एच में अगर आप कोई फ्रॉड करते हो तो आप 10 साल के लिए ऑडिटर नहीं बन सकते। कितने साल के लिए, 10 साल। और उसके बाद में क्लॉज आई में जो तुमने नहीं करना चाहिए वो कर दिया, वही जो नहीं करना था, वही जो नहीं करना था, अरे वो जो तुमको नहीं करना चाहिए था पर तुम कर गुजरते हो हर बार। अरे जैसे छीनी नालायक, जैसे अगर तुम किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, अच्छा तू वो सोच रहा था, वो नहीं, हाँ जैसे तुम किसी कंपनी का अगर क्या कर रहे हो ऑडिट, तो तुमने उस कंपनी का अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए। तुम्हें अकाउंटिंग कर रहे हो, तुम्हें ऑडिट कर रहे हो, तो क्या फायदा जीवन के अंदर। तुमने ना उसका अकाउंटिंग करना चाहिए, ना ही तुमने उसका ईआरपी मेंटेन करना चाहिए। ईआरपी मतलब टैली, एसएपी, ये तुमने मेंटेन नहीं करना है। ना ही तुमने उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस देखना है, ना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस, ना ही मैनेजरियल सर्विस। सो सिंपली सेक्शन 144 में कुछ ऐसी चीजें बोली है जो तुमने नहीं करनी चाहिए। सो अगर आप जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, तो जो करना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो समझ, ये समझ में तो आया होगा, हाँ तो ये चीज को आपने याद रखना। सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार उसे, 144। टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेस है ABCDEFGHI, ठीक है। इसको याद कैसे रखे, याद रखने का सिंपल टेक्निक, क्लॉजेस के साथ ए क्लॉज पर से क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, तो आप याद रख सकते हो ABC। ABC ने नालायक, ABC बोल रहा हूं मैं जीवन में, ABC बोले तो पहला वाला क्लॉज क्या है, ABC मतलब ए बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद में एम्प्लॉय ऑफिसर नहीं चलता, तो बदमाश, बी फॉर बदमाश, ऑफिसर और एम्प्लॉय, बी फॉर बदमाश, ऑफिसर और एम्प्लॉय, समझ में आ रहा है। सी के अंदर एम्प्लॉय ऑफिसर का एम्प्लॉय एंड पार्टनर नहीं चलता, तो एम्प्लॉय और ऑफिसर का एम्प्लॉय और पार्टनर नहीं चलता, तो पर्सन सी फॉर कनेक्टेड टू ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, टू ऑफिसर एंड क्या लिख बाद उसे एम्प्लॉय। सो ए फॉर ए बी सी, बी फॉर बदमाश, ऑफिसर और एम्प्लॉय, सी फॉर कनेक्टेड टू ऑफिसर और एम्प्लॉय, डी फॉर 3D, 3 डेंजरस डिस्क्वालिफिकेशंस, जिसके अंदर क्या है, शेयर्स, इंडेटेडनेस, गारंटी एंड श्योरिटी। सो इट इज क्या लिख बाद उसे 3D। ई फॉर ई स्पेशल बिजनेस, क्या बोलना है, स्पेशल, ई स्पेशल बोलते हैं ना अपन, स्पेशल, ई स्पेशल बिजनेस, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, ई स्पेशल बिजनेस। उसके बाद में ऑफिसर और एम्प्लॉय का रिलेटिव नहीं चलता, रिलेटिव मतलब फैमिली, सो एफ फॉर फैमिली ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। वापस से बोल, क्या फैमिली मतलब क्या बोला,
नहीं, सो एफ फॉर का एक बार उसे फैमिली। ए क्या में, ए में क्या था, ए बी सी, बी बी फॉर बदमाश एम्प्लॉय ऑफिसर, सी फॉर कनेक्टेड, डी फॉर 3D, उसके बाद में ई फॉर ई स्पेशल बिजनेस, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर गधा एम्प्लॉय, एंड जी फॉर ग्रेटेस्ट लिमिट। ग्रेटेस्ट क्या लिखा जैसे लिमिट, इसमें दो चीजें है ना, सो जी फॉर गधा एम्प्लॉय एंड जी फॉर ग्रेटेस्ट लिमिट। उसके बाद में एच फॉर फ्रॉड किया है तो हरामखोर ऑडिटर, एच फॉर हरामखोर ऑडिटर, अगर फ्रॉड किया तो हरामखोर ऑडिटर। क्या, आई फॉर इनवैलिड सर्विसेज, आई फॉर इनवैलिड सर्विसेज। अच्छा, एफ तक नहीं है, एम में क्या है जीवन में, नालायक। सो इनवैलिड क्या लिखवा जो से सर्विसेज, समझ में आ रहा है, ऐसी सर्विसेज जो नहीं देनी चाहिए। एक बार वापस से बोल के बताओ, ए बी सी, बी फॉर बदमाश एम्प्लॉय ऑफिसर, सी कनेक्टेड टू एम्प्लॉय ऑफिसर, डी डेंजरस डिस्क्वालिफिकेशन 3 वाले, ई स्पेशल बिजनेस, एफ फैमिली, जी गधा एम्प्लॉय ग्रेटेस्ट लिमिट, एच हरामखोर ऑडिटर एंड आई इनवैलिड सर्विसेज। ये है आपका पूरा का पूरा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। मार्किंग मुर्किंग करने हैं जीवन के अंदर तो कर लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट, ठीक है। और साथ में सेक्शन नंबर 140, अच्छा सबसेक्शन 3 कहता है कि इसमें से कोई डिस्क्वालिफिकेशन आपने लिया है तो आप ऑडिटर बन नहीं सकते। पर व्हाट इफ अगर आप ऑलरेडी ऑडिटर हो और बाद में डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुआ, समझो आप ऑडिटर हो और बाद में आपकी कंपनी की एम्प्लॉय के साथ शादी हो गई, उधर ही जुगाड़ जमा लिया तुमने, हाँ है ना, तुम ऑडिट करने गए थे, शादी करके वापस आए, ठीक है, तो रिलेटिव तो बाद में बना ना, हाँ है ना। तो मुझे एक बात बताओ, फिर ऐसे सिचुएशन में वैकेट करना पड़ेगा। तो ये वैकेट करना कहां लिखा है, सबसेक्शन 4 में। कहां लिखा है, सबसेक्शन 4 कि 3 का डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर बनने के बाद लगा तो सबसेक्शन 4 में वैकेट। क्लियर है आंसर। चलो मैं चाहूंगा एक बार 141 रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
चलो फटाफट रीड करो, मैक्स 2 मिनट्स। तुम्हारी नजर मेरे को ठीक नहीं लो, पहले तो एसी के ऊपर नजर थी, वो लेके जाना है, अब वो फैन को देखे जा रही कि फैन लेके जाऊंगी आज। क्या चल रहा है क्या मालूम लाइफ में। नहीं तो वो भी लेके जाते थे ना तुम। लास्ट एक ही चीज यहां बचेगी, वो मेंबर को भी लेके चले जाना फिर, बेकारी लोग नालायक। चलो डन एवरीबॉडी, क्लास ज्यादा नहीं लेना, खतरे से खाली लग नहीं रहा मेरे को। एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें गायब होना शुरू में काउंट करके रख दो ना तो आज क्या क्या है। तो चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना। 141 हो गया, चलो 141 हो गया, हमारा आधा टेंशन खत्म। अब हम 139 से बहुत प्यार से आगे बढ़ सकते हैं। आ जाइए आप सेक्शन नंबर 139 पे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यही रेडी अकेला, ठीक है, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का इकलौता सेक्शन है। सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार उसे? 139। अब हम स्टार्ट एक्चुअली करना चाहिए 139 सबसेक्शन 1 से 4, फिर 5, फिर 6, 7, पर ऐसा अपन ने किया नहीं कभी। तो अपन शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ऑडिटर से, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर समझ में आएगा तो रेगुलर ऑडिटर बाद में अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। आर यू रेडी गाइस? लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, पेज नंबर 10.11, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, लेट्स गो। पहली बात तो फर्स्ट ऑडिटर किस प्रकार से अपॉइंट होता है, कैसे अपॉइंट होता है, इन चीजों को एक बार बहुत अच्छे से समझा दूं मैं, लेट्स गो। बच्चों एक बात आप याद रखिएगा, नॉर्मली कंपनी 3 पिलर्स के सिवा चल ही नहीं सकती, ठीक है। 3 पिलर्स बहुत जरूरी है। सबसे पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज ए मैनेजमेंट, दूसरा मेंबर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, तीसरा ऑडिटर फॉर चेकिंग कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक से पैसा यूज कर रहे हैं या नहीं। इसमें से एक भी पिलर कोलैप्स हो गया, कंपनी निपट जाएगी। बोर्ड नहीं है तो काम कौन करेगा, मेंबर नहीं है तो पैसा कौन देगा, ना ऑडिटर नहीं है तो रामलिंगा राजू, नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे वाले लोग बनेंगे। इसलिए जैसे कंपनी मिनिमम 1, 2 या 7 मेंबर्स के साथ बनता है, कंपनी मिनिमम 1, 2 या 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बनता है, बराबर है ना? क्लिक हो रहा है। सो ओपीसी 1-1, प्राइवेट 1-2, पब्लिक 3-7, समझ में आ रहा है? सो कंपनी जैसे मिनिमम इन लोगों के साथ बनता है, उसी प्रकार कंपनी मिनिमम 1 ऑडिटर के साथ भी बनना ही चाहिए, चाहे कंपनी का टाइप कुछ भी हो। एक ऑडिटर चाहिए म्हणजे पाहिजे, समझ में आ रहा है सबको? और वो कितने दिनों में चाहिए म्हणजे पाहिजे? तो सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 बोलता है फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, 139(7) फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। तो बोले नॉर्मल कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो रही है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वहां से लेके 30 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर? 30 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर? कितने डेज के अंदर? 30 डेज के अंदर आपने मिनिमम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिनिमम एक ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिनिमम एक ऑडिटर अपॉइंट करना है, और कभी अगर बोर्ड फेल हो जाता है इसको अपॉइंट करने से, तो इनकॉर्पोरेशन से 90 डेज के अंदर जनरल मीटिंग इसको अपॉइंट करेगी।
अब यहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखा है, हालांकि नॉर्मली एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता है, ये स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग होता है जो नॉर्मली 1 महीने बाद और 6 महीने के अंदर होल्ड करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार, यस सर नो। क्लियर हो रहा है मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं? यस सर नो। बहुत बढ़िया। दूसरा 139 सबसेक्शन 7 कहता है रेगुलर फर्स्ट ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी। कौन सा कंपनी? गवर्नमेंट। सो बोला है कंपनी जब से इनकॉर्पोरेट होती है गवर्नमेंट, वहां से 60 डेज के अंदर सीएजी ही ऑडिटर अपॉइंट करेगा। व्हाट इज सीएजी? द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी अपॉइंट करेगा। और अगर वो फेल हो जाता है तो 30 डेज के अंदर बोर्ड अपॉइंट करेगा, और बोर्ड भी फेल हो जाता है तो 60 डेज के अंदर जनरल मीटिंग अपॉइंट करेगा। सो बोर्ड भी फेल हो जाता है तो 60 डेज में कौन? जनरल मीटिंग। वो भी ईजीएम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जनरल मीटिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो। जनरल मीटिंग जब जब ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है तब तक जनरल मीटिंग कौन से रेजोल्यूशन से अपॉइंट करेगा? ऑर्डिनरी। बस इतना ही लिखा है आपके फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में। हाँ, एक खास बात जलूल लिखी है। जलूल क्या लिखी है? व्हाट इज टेनुरे? व्हाट इज टेनुरे? तो बताओ इस फर्स्ट ऑडिटर का टेनुरे कब तक होगा? फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट क्या लिख बात ऐसे? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट जनरल मीटिंग नहीं, फर्स्ट एनुअल जनरल। समझ में आया पक्का? चलो मैं चाहूंगा सब सेक्शन 6-7 रीड कर लीजिए और जो मैंने मार्किंग किए हैं कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। ओके, लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया? कृपया कमेंट करके बोल दीजिएगा प्लीज। डन? क्या खिचड़ी पकड़ी है वहां पे? क्या? मेरे को पिलर के पीछे बैठना है, इसी की वजह से। वो तो बंदी है। तो बिरबल की खिचड़ी पका रहे हो तुम? वो उधर एसी शुरू है इसलिए मस्त। बैठो किधर? वो कोने में बैठो जाके। लेट्स गो। ये हो गया सबका सबसेक्शन 6 एंड 7। बोलो हाँ है ना? ये होने नालायक। ये होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर सबसेक्शन नंबर 1 टू सबसेक्शन नंबर 5। सबसेक्शन नंबर 1 टू नंबर 5 ये तुमको अगर समझना है, समझ में सबसे पहले तुमको एप्लीकेबिलिटी समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? बोलो एक बार। एप्लीकेबिलिटी। सबसेक्शन 1 से 5 सर टेक्स्ट में ईजीएम लिखा हुआ है, उसको ई काट दीजिए, सिर्फ जीएम रखिए, बिकॉज इट इज ए जनरल मीटिंग, इट्स नॉट ईजीएम। ठीक है, बेसिकली क्योंकि पहले ही इसमें ईजीएम नहीं होता, दैट इज नॉर्मली कॉल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग इन रियलिटी इन द सब्सटेंस। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बच्चों एप्लीकेबिलिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि सबसेक्शन 1 से लेकर 5 समझ ही नहीं सकता जब तक आपको कैटेगराइजेशन नहीं समझता। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उठाइए पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी जो है उसको आप बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। जैसे लिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्या हो रहा है? हाँ, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऐसा पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, ऐसा पब्लिक कंपनी जिसका बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन 50 करोड़ के ऊपर है, और अदर्स। ठीक है, सबके बीच में और है। ओके, फिर उठाओ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ के ऊपर है, बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह 50 करोड़ के ऊपर है। अब जो पहले 3 कैटेगरीज है, मतलब लिस्टेड, देखो मैं कौन कौन से मार्क कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। लिस्टेड 1, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ वाला 2, बोरोइंग्स लोन्स वाला 3, प्राइवेट कंपनी 50 करोड़ पेड अप कैपिटल 4, एंड बोरोइंग्स वगैरह वाला 5।
ये जो 5 कंपनी है, सबसे पहले लिस्टेड तक के यहां तक, लिस्टेड से लेके यहां तक, और प्राइवेट कंपनी के 50 करोड़ वाले, इन सबको जमा करके अगर आप बोलोगे तो इसको नॉर्मली कहा जाता है कैटेगरी ए कंपनीज, जिनको हम प्यार से बिग कैट्स भी कहते हैं, बड़ी बिल्ली। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर ना। सो व्हाट वी विल कॉल देम, क्या बोले एक बार जोर से? बिग कैट्स। ठीक है, सो बिग कैट्स। फिर जो अदर्स बचते हैं, ये वाला अदर आप देख सकते हो, एंड ये वाला अदर, ठीक है, इनको हम कहते हैं स्मॉल कैट्स, छोटी बिल्ली। समझ में आ रहा है सबको? सो बड़ी बिल्ली, छोटी बिल्ली। और फिर इन कंपनीज में अगर गवर्नमेंट का स्टेक है तो उन्हें हम कहते हैं सरकारी बिल्ली। कौन सा बोले एक बार जो से? सरकारी, तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कैटेगरी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो कैटेगरी में मुझे एक बार वापस से सब जन बोलेंगे लाइन से, क्या क्या कैटेगरी है बोले एक बार बच्चों? आप एप्लीकेबिलिटी बोलो, बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली नहीं बोलना है भिखारी लोगों। पब्लिक कंपनी क्या क्या? लिस्टेड, पेड अप कैपिटल 10 करोड़, बोराइंग्स लोन्स वगैरह 50 करोड़, और अदर्स प्राइवेट में पेड अप कैपिटल 50 करोड़, बोरिंग लोन 50 करोड़। इनको हम क्या कहते हैं? बिग कैट्स। ठीक है, बड़ी बिल्ली। बाकी अदर्स को छोटी बिल्ली, और गवर्नमेंट ने इनके अंदर स्टेक रखा है तो सरकारी बिल्ली। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अब जो बड़ी बिल्ली है उसमें ऑडिटर कैसे अपॉइंट करते हैं, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की चीज है, फोकस कीजिएगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है, होल्ड होल्ड, हाँ बहुत अच्छे से ध्यान देना। एवरीबॉडी, लेट्स गो। कैटेगरी ए कंपनीज को हम प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? बड़ी बिल्ली नहीं, नालायक यार, हाँ, वी कॉल देम एज अ बिग कैट्स। नाउ बिग कैट्स के अंदर आप ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हो, एक तो किसी इंडिविजुअल को या किसी फर्म को। नॉर्मली तो बड़े कंपनीज में इंडिविजुअल अपॉइंट ही नहीं होता, अपॉइंट होती है तो फर्म ही अपॉइंट होती है। पर भले ही इंडिविजुअल अपॉइंट हो तो इंडिविजुअल का मैक्सिमम अपॉइंटमेंट जो हो सकता है वो 5 इयर्स का हो सकता है। सब जन बोलो कितने इयर्स का हो सकता है? 5 इयर्स। ठीक है, पहले एजीएम में अपॉइंट किया जाएगा और 6th एजीएम में रिटायर होगा। इंडिविजुअल 5 इयर्स अपॉइंट होने के बाद में उसको 5 इयर्स का कूलिंग पीरियड लगता है। कितने साल का कूलिंग पीरियड लगता है? 5 ईयर। और फिर वापस से वो री एलिजिबल हो जाएगा इन द 11th एजीएम। एक बात याद रखना है, जो 5 इयर्स में ऑडिटर है उसका कूलिंग पीरियड में जो भी ऑडिटर बनने वाला है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप पहले 5 साल इंडिविजुअल ऑडिटर थे, फिर आपने एक फर्म बनाई और कूलिंग पीरियड में फर्म ऑडिटर बना दी तो नहीं चलेगा। आपका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, आइडिया क्लियर है पक्का? अगर आप फर्म को ऑडिटर बना रहे हो तो फर्म को कॉन्जिक्यूटिव 10 इयर्स, कॉन्जिक्यूटिव कितना साल? 10 इयर्स ऑडिट करना अलाउड है। कॉन्जिक्यूटिव कितना साल बोले एक बार? 10 है। 5 इयर्स के 2 टर्म अलाउड है। पहले एजीएम में अपॉइंट हो गए, 9 एजीएम कंटिन्यू करोगे, 11th एजीएम में रिटायर हो जाओगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। फिर फर्म को अगेन 5 इयर्स का कूलिंग पीरियड है। सर इंडिविजुअल को 5 ईयर अपॉइंटमेंट, 5 ईयर कूलिंग, फर्म को 10 ईयर अपॉइंटमेंट एंड 5 ईयर कूलिंग। हाँ बेटा, या 10 ईयर अपॉइंटमेंट और 10 ईयर कूलिंग नहीं है, 10 ईयर अपॉइंटमेंट और 5 ईयर ही कूलिंग है। और जो फर्म आपने अपॉइंट की थी 10 साल के लिए, उसका कूलिंग पीरियड में उसका या उसके पार्टनर का कोई भी रिलेशन होना नहीं चाहिए। समझ में आए? वापस फिर फर्म 16th एजीएम में री एलिजिबल हो जाएगी। अब इसमें बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं, फॉर अगर ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया और उसने एक दिन कंपनी में रहने के बाद में रिजाइन कर दिया और कंपनी छोड़ दी, तो कूलिंग कितना लगेगा सर? हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया, एक दिन रह के उसने कंपनी छोड़ दी, कूलिंग कितना? 5 साल? एक ही दिन तो रहा वो। चलो एक दिन, 1 साल, 1 महीना, देखो 5 साल अपॉइंट हो तो 5 साल कूलिंग, तो एक दिन अपॉइंट हो तो एक दिन कूलिंग, 1 साल अपॉइंट हो तो 1 साल कूलिंग।
हाँ ना, नहीं क्यों? मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट नहीं। बोलो कितने दिन का कूलिंग? जोर से बोलो कितने दिन का? एक सेकंड भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो भी 5 साल का कूलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 दिन हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, 1 हफ्ता हो, या 1 रात, सॉरी मतलब ऐसे सिचुएशन में आपको कूलिंग कितना है बोले एक बार उसे 5 साल। क्लियर है आंसर? नेक्स्ट वाला दूसरा, फोकस कीजिएगा। अगर ये छोटी बिल्ली है, कौन सी बिल्ली? तो ऐसे सिचुएशन में युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक जो ऑडिटर है वो चलता जाएगा, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पहले एक ऑडिटर, उसका दोस्त डायरेक्टर, फिर दोनों मर जाएंगे, फिर डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर, ऑडिटर का बेटा ऑडिटर, चलने दो, फर्म सेम। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? क्या ना लिख लो। फिर उसके बाद में आता है गवर्नमेंट ऑडिटर। गवर्नमेंट ऑडिटर को स्टार मार्क करता हूं, प्रोसीजर थोड़ा सा वाहियात है तो कृपया ध्यान दीजिएगा। यहां एक मस्त वाला कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट ऑडिटर के सिचुएशन में बोला है कि जब जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 25-26, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है बोले एक बार? 25-26, तो जिस दिन फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, जैसे 1 अप्रैल 2025, वहां से 180 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर? 180 डेज के अंदर सीएजी, साक्षात सीएजी आपके लिए एक ऑडिटर अपॉइंट कर देगा, फाइनेंशियल ईयर शुरू होते से ही 180 डेज में। सवाल है फिर ये ऑडिटर कब तक काम करेगा? तो ये ऑडिटर काम करेगा उस फाइनेंशियल ईयर के कंक्लूडिंग एजीएम तक। जैसे फाइनेंशियल ईयर कौन सा था बोले एक बार? 25-26। 25-26 का एजीएम नॉर्मली ड्यू डेट क्या आएगा बोले एक बार? सब जन बोलो ड्यू डेट क्या आएगा? 38 सितंबर 2026। तो ऑडिटर 30 सितंबर 2026 तक काम कर सकता है, या एजीएम विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज का बोले एक बार उसे अर्लियर। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? इसमें एक खतरनाक चीज होगी, वो ये है कि गवर्नमेंट कंपनी में फिर नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि आपको 2-2 ऑडिटर देखने मिले। कैसे 2-2 ऑडिटर देखने मिलेंगे? तो फोकस कीजिएगा। 1 अप्रैल 2025 को फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, आपने 180 डेज के अंदर मतलब 28 सितंबर तक के सीएजी ने एक ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। यह ऑडिटर कब तक फंक्शन करने वाला है? अगर आप ध्यान दोगे तो यह ऑडिटर फंक्शन करने वाला है टिल उस साल के एजीएम तक। अब ये साल खत्म हुआ 31 मार्च 2026 को, एजीएम हो रही है 30 सितंबर को, तो जो ऑडिटर 28 सितंबर 25 को अपॉइंट किया था, 28 सितंबर 25 को, वो ऑडिटर वर्क कर रहा है 30 सितंबर 26 तक के। और सीएजी को फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27, फॉर फाइनेंशियल ईयर कौन सा बोले बाद उसे? 26-27, तो 180 डेज के अंदर नया ऑडिटर अपॉइंट करना है ना। सो 26-27 का ऑडिटर तो सितंबर के पहले ही आएगा, 30 सितंबर के पहले आएगा। जोर से बोलो हाँ है ना? तो वो 1-1.5 महीना रह सकता है जब आपकी कंपनी में 2 ऑडिटर रहेंगे, एक रिटायर जो होने वाला है आने वाले एजीएम में, और एक जो अगले साल के एजीएम में रिटायर होने वाला है। तो ऐसा हो सकता है, ये चीज को आप कृपया याद रखिएगा। क्लियर है आंसर? तो मैं चाहूंगा यहां पे आपका ऑडिटर का अपॉइंटमेंट खत्म हुआ। सेक्शन नंबर 139, सब सेक्शन नंबर क्या हो गया ये? ओके, सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन नंबर शुरू हो गया इसका। आमी जे तुम्हारा मैं लैपटॉप भी चेंज नहीं कर पा रहा हूं, मतलब दूसरा लैपटॉप लेके आता हूं, इसमें से नोट्स भी ट्रांसफर नहीं हो रहे। वो सब वन नोट में है, उसका बैकअप क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत कुछ लिख के रखा है उसके ऊपर, तो उसको बहुत लोड आ जा रहा है। वो बोल रहा कि बैकअप क्रिएट नहीं कर रहा, उसको शिफ्ट कैसे करूं जीवन में? ठीक है, अरे भिकारी नवीनच घेऊन आलो होतो ना, अगर मेरे को क्या शौक है 2-2 लैपटॉप हर रोज लेके आऊं यहाँ पे। चलो ये हो गया सबका? हाँ है ना? मैं चाहूंगा एक बार 139 सबसेक्शन 1 से लेके 4, 1 से लेके 5 कृपया एक बार रीड कर लीजिए। नया ले लो बोले नालायक, टीवी ले लेता ना, बेकार आदमी। ये थिएटर ले लेता नहीं तो।
कुछ ड्रॉ करना है, 2 ऑडिटर वगैरह वाला कंसेप्ट है, कुछ भी आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो फास्ट, गो फॉर इट फास्ट। हो गया पक्का? ओके, लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत है तो कृपया पूछ लीजिए। सर आप आईपैड कैरी करो, ये क्वेरी सॉल्व नहीं होगी। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं कॉन्सोलेट करना अच्छे तरीके से। यहां तक समझ में आया पक्का? बोलो हाँ आया ना। ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। नाउ नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग फॉर इज सबसेक्शन नंबर 8, दैट इज अ कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। अब कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर अपॉइंट करने का जो भी प्रोसेस है ना, वो भी थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए कृपया अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहली बात, व्हाट इज अ कैजुअल वैकेंसी? कैजुअल वैकेंसी का मतलब अनप्लान्ड वैकेंसी एट द प्लेस ऑफ ऑडिटर। और अनप्लान्ड वैकेंसी किसी भी चीज की वजह से हो सकती है, डेथ से हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन से हो सकती है, रेजिग्नेशन से हो सकती है, या और भी किसी प्रोसेस से हो सकती है। अब अगर कैजुअल वैकेंसी हुई है इन द प्लेस ऑफ द ऑडिटर, तो ऐसे सिचुएशन में आप उस कैजुअल वैकेंसी को किस प्रकार खत्म करोगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर, तो समझ में आएगा। लेट्स गो। सबसे पहले कैजुअल वैकेंसी है नॉर्मल कंपनी में। कौन सी कंपनी में बोले एक बार उसे? नॉर्मल। या कैजुअल वैकेंसी है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी में, मतलब सरकारी बिल्ली में। सो नॉर्मल बिल्ली और सरकारी। तो नॉर्मल कंपनी में कैजुअल वैकेंसी हुआ है, 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो, कैजुअल वैकेंसी फिलअप कर दो। ठीक है, अगर ये कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से, अब मुझे एक सवाल का थोड़ा सा जवाब देना, कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से हो रहा है, तो मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ऑडिटर को रिजाइन करना पड़ रहा है? ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है मतलब कंपनी में कुछ तो भी बहुत ही ज्यादा बेकार बात चल रही है, मतलब ऐसा कुछ तो भी चल रहा है जिससे एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये ऑडिटर की बात नहीं सुन रहे, एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो मुझे बताओ ऑडिटर ने अगर रिजाइन किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तकलीफ दे रहे हैं, तो ये डिस्कशन वाला मैटर बनता है या नहीं बनता है? बोलो हाँ है ना। इसलिए कैजुअल वैकेंसी
अगर रेजिग्नेशन की वजह से है तो उस कैजुअल वैकेंसी का जो फिलअप किया है बोर्ड ने उसको 3 महीने में कंफर्म करो जनरल मीटिंग में। मतलब बोर्ड का फिलअप जो किया है बंदा, समझो बोर्ड ने अपॉइंट किया है किसी बंदे को एक्स को, तो एक्स को रहने दो पर वो अपॉइंटमेंट को जनरल मीटिंग में कंफर्म भी कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड मैनिपुलेशन में खुद ही का रिक्वायर्ड जो बंदा है उनका ही जो दोस्त वोस्त है उसको अपॉइंट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसलिए उसको फिलअप करो और साथ में जनरल मीटिंग में डिस्कस कर लो कि भाई साहब ये कैजुअल वैकेंसी हुआ क्यों। क्लियर है? और अगर रेजिग्नेशन की वजह से नहीं है कैजुअल वैकेंसी, डेथ की वजह से है, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तो बोर्ड ने जो कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर अपॉइंट किया है वही फाइनल माना जाएगा। तो यहां एक छोटा सा लूप होल है कि बोर्ड नॉर्मली नॉन रेजिग्नेशन वाले केसेस में खुद के दोस्त वोस्त को अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है? हालांकि इसको भी आपने जनरल मीटिंग में फिलअप करने लायक रखना चाहिए था पर वो दिया नहीं है, वो लूप होल है, वो आगे जाके करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वाली चीज, कैजुअल वैकेंसी अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी में हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो ऑडिटर है वो अपॉइंट किया जाएगा सीएजी की तरफ से। किसकी तरफ से बोले एक बार? सीएजी। कितने दिनों में अपॉइंट किया जाएगा? 30 डेज। और अगर सीएजी अपॉइंट नहीं करता है तो अगले 30 डेज में इसको कौन अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है? एक बात याद रखना, फर्स्ट ऑडिटर में प्रोविजन था कि सीएजी नहीं तो बोर्ड और बोर्ड नहीं तो जनरल मीटिंग, लेकिन यहां पे सीएजी नहीं तो बोर्ड, बोर्ड के बाद जनरल मीटिंग नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर में जैसे लिखते हैं ना कि सीएजी नहीं तो बोर्ड, बोर्ड नहीं तो जनरल मीटिंग, कैजुअल वैकेंसी में भी वही लिख के आ जाते हैं कि सीएजी नहीं तो बोर्ड, बोर्ड नहीं तो जनरल मीटिंग। वो गलती मत करना। तो यहां पे जनरल मीटिंग है ही नहीं, तो यहां पे नोट चाहिए तो डाल के रख दीजिए कि इफ बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट, इफ बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट, power is not transferred to general meeting. If board fails to appoint, power will not be transferred to general meeting. Power will not be transferred to general meeting. ठीक है? और सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 8 रीड कर लो एक बार फटाफट। जो मैंने मार्किंग किया है वो चाहिए तो मैं बोर्ड के ऊपर दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये मार्किंग देख लीजिए और चाहिए तो रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। 139 सबसेक्शन 8। चलो डन, बोलो हाँ है ना? लेट्स गो। यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? सो यहां पे कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर आपका होता है केवल एक बार से खत्म। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं एग्जैक्टली? बोलो हाँ है ना? चलो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर वाली, तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर, दैट इज कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर के बारे में। सबसेक्शन नंबर 9 से लेकर सबसेक्शन कौन सा? 11। एक बार मुझे सभी सेक्शन सबसेक्शन बोलो। 1 से लेकर 4 क्या था? रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी। सबसेक्शन 5 रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। सबसेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी। सबसेक्शन 7 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। अब 9 से लेकर 11 में क्या है? रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑडिटर 5 साल ऑफिस में रहा, ठीक है। अब नॉर्मली सिचुएशन ऐसा है कि बड़े कंपनी में ऑडिटर 5 साल में रहने के बाद 5 साल का कूलिंग है, ठीक है। पर सबसेक्शन नंबर 9 से लेकर 11 क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा। समझो आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया,
नॉर्मली ऑडिटर नेक्स्ट एजीएम में रिटायर होने वाला है। अरे हाँ है ना, नॉर्मली ऑडिटर नेक्स्ट एजीएम में रिटायर होता है, पर बड़ी कंपनी में आप 5 साल तक उसको रीअपॉइंट कर सकते हो। तो आपने ऑडिटर अपॉइंट किया, वो नेक्स्ट एजीएम में रिटायर होने वाला है, पर आपने नेक्स्ट एजीएम में उसके जगह पे दूसरा ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किया। ऑडिटर अपॉइंट किया, नेक्स्ट एजीएम में रिटायर होने वाला है, पर नेक्स्ट एजीएम में आपने उसके जगह पे दूसरा ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किया, तो जगह तो खाली रह जाएगी। तो क्या करें फिर अब, और बिना पिलर्स के तो कंपनी ढह जाएगी। सो व्हाट टू डू? तो बोला गया है कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाएगा अगर आप उसके जगह पे किसी को अपॉइंट नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाएगा। अब अगर ये कह रहे हैं कि रिटायरिंग ऑडिटर ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाएगा उसके जगह पे किसी को अपॉइंट नहीं करते, तो मेरा सवाल है कि कोई ऑडिटर है बिग कैट वाला और उसने 5 साल खत्म कर दिए, 5वां साल का एजीएम है ये, यहां पे उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, और उसके जगह पे अगर कंपनी ने किसी को अपॉइंट नहीं किया, तो क्या वो भी रीअपॉइंट हो सकता है ऑटोमेटिकली? हां या ना? क्या उसको ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट करे या नहीं करे? सब जन बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो उसको आप रीअपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर कंपनी क्या करेगी? तो इस केस में कंपनी को सेक्शन 147 के कॉन्ट्रावेंशन लगते हैं। सेक्शन 147 के क्या लगता है? कॉन्ट्रावेंशन। कंपनी को पेनल्टी लग जाएगी, हो सकता है ऑडिटर की जगह पे वैकेंसी रहेगी, पर कंपनी को पेनल्टी के डर से हो सकता है कंपनी उसको फिलअप कर दे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बस रीअपॉइंटमेंट के लिए इतनी ही चीजें बोलिए कि ऑडिटर को आप रीअपॉइंट कर सकते हो, लेकिन 5 साल के बाद नहीं कर सकते, और अगर वैकेंसी रहता है तो ऑडिटर रीअपॉइंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो 9 से लेकर 11 कृपया एक बार रीड कर लीजिए, छोटे छोटे सेक्शन है एकदम, ठीक है? गो फॉर इट फास्ट। थैंक्स रोहित। चलो डन एवरीबॉडी। चलो डन एवरीबॉडी, यस सर ना? ओके, सो अगर रीड करना हो गया तो अब हम जा रहे हैं रिमूवल एंड रेजिग्नेशन के सेक्शन नंबर 140 के ऊपर, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। सेक्शन नंबर 140 किस किस का है? तो एज यू सी सेक्शन नंबर 140 ये डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट्स के अंदर? बोले एक बार 2 से 2। यहां हम वैकेशन की बात कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। लेट्स गो। सो अगर मैं बात करूं सिंपली, तो सेक्शन नंबर 140 जो है 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है रिमूवल। रिमूवल का सबसेक्शन कौन सा है? 140 सबसेक्शन नंबर 1, और रेजिग्नेशन का है 140 सबसेक्शन नंबर कौन सा? बोले एक बार 2 से 2। रिमूवल के केस में रिमूवल 2 तरीके से हो सकता है। एक तो जनरल मीटिंग ऑडिटर को रिमूव कर रही है या एनसीएलटी ऑडिटर को रिमूव कर रहा है। जनरल मीटिंग अगर ऑडिटर को रिमूव कर रही है तो सबसे पहली चीज बोली है कि देखो बात को समझो, आप उसी को हकाल रहे हो जो तुम्हारी कंपनी का चेकिंग कर रहा है। जो चेकिंग कर रहा है आप उसी को हकाल रहे हो, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि मेंबर भी बेचारे नहीं, मेंबर भी नालायक फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि वही रिमूव कर रहे हैं। इसलिए ऑडिटर को रिमूव करने के लिए ना सीजी का अप्रूवल लगता है। किसका अप्रूवल लगता है? सीजी। सीजी पहले चेक करेगा कि सच में ऑडिटर को क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्या रीजन है एक्सेट्रा, और फिर ही सीजी परमिशन देगा। इतना ही नहीं, सीजी का परमिशन लगता है, साथ में आप देखोगे जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा। जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन है? स्पेशल, कि भाई साहब आप ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर ना। सो सीजी अप्रूवल, जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, और साथ में ऑडिटर को राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ऑडिटर को रिजाइन करते वक्त, मतलब हकालते वक्त उसको बोलने का मौका दिया जाएगा कि वो कंपनी के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या भला कर सकता है। ठीक है, उसको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा कि उसको किस वजह से रिमूव कर रहे हैं। हो सकता है उस रिप्रेजेंटेशन में पता चले कोई फ्रॉड वॉड चल रहा है तो,
और वो रिप्रेजेंटेशन जनरल मीटिंग में रीड आउट किया जाएगा और सभी लोगों को कॉपी सर्कुलेट किया जाएगा। ये इसीलिए क्योंकि अगर कभी ऑडिटर को कोई फ्रॉड पता है और मेंबर उसको उसी वजह से हकलना चाहते हैं, डायरेक्टर उसको उसी वजह से हकलना चाहते हैं, तो ये फ्रॉड स्ट्रेट अवे जनरल मीटिंग में ओपन हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और फिर ही ऑडिटर को रिमूव करेंगे। हालांकि ऑडिटर अगर कभी खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व है या कुछ गलत कर रहा है तो नॉर्मली सीजी के रेफरेंस पे एनसीएलटी ऑडिटर को कभी भी हकाल सकता है ऑर्डर पास करके कि भाई तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, और उस केस में 15 डेज में आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। एनसीएलटी का रिमूवल बहुत सिंपल है, ऑडिटर काम नहीं कर रहा, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, 15 दिन में खाली। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, ये समझ में आया तो फिर दूसरा एरिया आता है जो काय का है, बोले बाद से रेजिग्नेशन। अगर आप रेजिग्नेशन की बात करोगे तो नॉर्मल कंपनी में रेजिग्नेशन अलग होता है और गवर्नमेंट कंपनी में रेजिग्नेशन अलग होता है। नॉर्मल कंपनी में अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में आप देख सकते हो कि आपको दो लोगों को कंसेंट देना जरूरी है, एक है कंपनी और दूसरा है आरओसी। पहला कौन है बोले एक बार उसे कंपनी, और सेकंड कौन है बोले एक बार आरओसी। और वही अगर एक गवर्नमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी बोले एक बार गवर्नमेंट, तो 3 लोगों को आपने रेजिग्नेशन सबमिट करना जरूरी है, कंपनी, आरओसी, सीएजी। क्लियर है? अगर आप रेजिग्नेशन की डिटेल ठीक से सबमिट नहीं करते तो आपको नीचे दी गई पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, यह है सेक्शन 140 सबसेक्शन नंबर 2। आइडिया क्लियर है? सो एक साइड पूरी रिमूवल की प्रोसेस और दूसरी साइड पूरी रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का फॉर्म याद रखिएगा, एडीटी 3। एडीटी क्या बोलेगा? से 3 बहुत काम का ये फॉर्म है, मार्क करके रखिएगा। नीचे उसके प्रोविजन दिए गए हैं पेनल्टी के कि कितनी पेनल्टी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऊपर आपका सेक्शन 140 मेंशन किया है, कृपया एक बार 140 पढ़ लीजिए, और चाहिए तो आप एक बार जो मैंने कंटेंट यहां पे लिखा हुआ है वो मार्क कर सकते हो। गो फॉर इट फास्ट। रीड कर लो फास्ट। कौन है? टकरा के क्या दरवाजे के ऊपर? चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना? आगे बढ़े बच्चों। ओके, सेक्शन नंबर 140 होने के बाद में अब 141 हमारा ऑलरेडी हो चुका था डिस्क्वालिफिकेशन का। अब हम जा रहे हैं रेम्यूनरेशन के 142 के ऊपर। एकदम फालतू सा सेक्शन है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। इट इज अबाउट रेम्यूनरेशन। पूछा जाए रेम्यूनरेशन कौन देगा, तो सिंपल सी बात है, जो अपॉइंट करेगा रेम्यूनरेशन देगा। जनरल मीटिंग ने अपॉइंट किया, जनरल मीटिंग देगा। बोर्ड ने अपॉइंट किया, बोर्ड देगा। सीएजी ने अपॉइंट किया, सीएजी देगा। साथ में ऑडिटर ने ऊपर से कोई खर्चा किया है पेट्रोल वेट्रोल का, खाने वाने का, तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? सेक्शन 142 खत्म। तो मैं क्या मन से लगाऊ क्या अभी उसके अंदर? जीवन में पढ़ के देखो एक बार। Done everybody? Watch. समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर कौन सा बोले बात उसे? 143। 143 की हालत भी सीएसआर वाली सेक्शन जैसी है कि इसको जिला क्यों नहीं घोषित कर देते। ठीक है,
हालांकि 143 इतना बड़ा सेक्शन होने के पीछे का रीजन है, अगर आपने ऑडिट सब्जेक्ट किया है ग्रुप 2 में तो आपको पता चला होगा पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के ऊपर नियरली ऑडिट सब्जेक्ट में 2 से 3 चैप्टर आते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो ऑडिट सब्जेक्ट में 2 से 3 चैप्टर में आता है, इंस्टीट्यूट ने यहां पे वो 2-4 पेजेस में खत्म करने की कोशिश की है। तो आई विल रादर रिकमेंड यू कि जब भी पावर्स एंड ड्यूटीज का सवाल आए, अगर आपने ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसके हिसाब से ही पावर्स एंड ड्यूटीज का कमेंट करें। कंपनी लॉ मैटर्स के लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट में नहीं है। इस सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में से वो मैं आपको बता देता हूं, वो है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, जहां मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम आता है। तो आप आ जाइए सब्जेक्ट पेज नंबर 10.34 पे, इसको मैं एक बार समझा दूं। सो आर यू रेडी गाइस? बोलो हाँ है ना? ओके। समझो कंपनी के अंदर कभी भी फ्रॉड हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रॉड। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो फ्रॉड का रिपोर्टिंग करे, क्योंकि क्या देखा गया कि सत्यम का फ्रॉड हुआ, पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड हुआ, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्टिंग पहुंचा ना वो सबसे एंड में पहुंचा। ठीक है, मतलब रामालिंगा राजू ने सत्यम में जो लेटर लिखा, वो लेटर लिखने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिपोर्टिंग पहुंचा। हालांकि ये रिपोर्टिंग तो ऑडिटर से ही पहले चला जाना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक का पैसा दांव पे लगा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर 143 सेक्शन में एक प्रोविजन डाला। सीजी बोलता है कि कभी अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर है, कितने करोड़ के ऊपर है? 1 करोड़, तो ऑडिटर ने नोटिस देनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को, यह पूछने के लिए कि बताओ फ्रॉड हुआ कैसे, रीजंस दो कि ये क्या है, ये फ्रॉड हुआ कैसे। ये ऑडिटर नोटिस देगा 45 डेज का, और 45 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी ने ऑडिटर को रीजंस देने हैं, रिप्लाई देने हैं कि ये फ्रॉड क्यों हुआ, कैसे हुआ, काय को किया। और इन रीजंस को कंपाइल करके ऑडिटर 15 डेज में सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डायरेक्ट सेक्रेटरी लेवल पे इस रिपोर्ट को पब्लिश करेगा कि भैया 1 करोड़ से बड़ा फ्रॉड हुआ है, और जो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनका रिप्लाई ये है कि ये फ्रॉड हुआ क्यों। इससे होगा क्या कि अगर वो फ्रॉड बढ़ रहा है तो इमीडिएट कंट्रोल में आ जाएगा और पिनलाइजेशन के प्रोविजंस शुरू हो जाएंगे। काय के प्रोविजन शुरू हो जाएंगे? पिनलाइजेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो। दूसरी बात, अगर फ्रॉड से 1 करोड़ के नीचे है तो क्या करें? फ्रॉड अगर 1 करोड़ के नीचे है तो नोटिस देना चाहिए ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 45 डेज में उनका रिप्लाई आएगा, और इसको बोर्ड रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कौन से रिपोर्ट में? बोर्ड रिपोर्ट में। सेक्शन नंबर 134 में हमने बोर्ड रिपोर्ट का जो कंटेंट देखा था ना, उसके अंदर हमने ये चीज को देखा था, फ्रॉड रिपोर्टिंग, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में। समझ में आ रहा है? बस इतना ही कंटेंट है जो सबसेक्शन 12 का आपको इस सेक्शन में याद रखना है। ठीक है, फ्रॉड का रिपोर्टिंग कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार सर। नो, ये चीज को याद रखिएगा। मैं चाहूंगा मार्किंग करना है कर लो, चाहिए तो सबसेक्शन 12 का जो टेक्स्ट है वो सिर्फ आप रीड कर सकते हो। गो फॉर इट फास्ट। डिपॉजिट चैप्टर और जनरल क्लॉजेस के हम एग्जिस्टिंग लेक्चर्स दे रहे हैं बेटा मयंक, वो ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखे हैं ग्रुप के ऊपर। चलो डन एवरीबॉडी।
ओके, सो यहां पे आपका 143 पावर्स एंड ड्यूटीज का होता है, क्या बोले एक बार उसे खत्म। फिर आते हैं 144 पे कि कौन सी ऐसी 144 हमने कहां पे देखा था, बोलो एक बार। इनवैलिड सर्विसेज कहां देखा था, सेक्शन बोलो 141 सबसेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर आई, इनवैलिड सर्विसेज। तो देखो कौन कौन सी सर्विस नहीं चलती, मैंने ऑलरेडी बोली है, अकाउंट कीपिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट सर्विस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एसएपी वगैरह, एक्चुअरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रेंडरिंग ऑफ एनी आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस। ठीक है, सो बेसिकली देखा जाए तो अगर आप इतनी सर्विसेज कंपनी को दे रहे हो तो आप उस कंपनी के ऑडिटर बन ही नहीं सकते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर उसके बाद में ट्रांजिशन पीरियड दिया है, उसको काट दीजिए क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड 2014 में आया था, वो तभी खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद में बोला है कि ये सर्विसेज कैसे नहीं दे सकते, तुम तो नहीं दे सकते, देखो तुम एज ए ऑडिटर तो दे ही नहीं सकते, पर तुमने तुम्हारे दोस्त को अपॉइंट किया, रिलेटिव को अपॉइंट किया, तुम्हारे पार्टनर को अपॉइंट किया, तो वो दे सकते हैं क्या, तो उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए बोला गया है। अगर इंडिविजुअल ऑडिटर होगा तो इंडिविजुअल खुद नहीं दे सकता, उसका रिलेटिव नहीं दे सकता, उसका कोई भी एसोसिएटेड कनेक्टेड पर्सन नहीं दे सकता, उसका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर नहीं दे सकता, उसके कंट्रोल में कोई पर्सन है तो वो नहीं दे सकता, और उसके ब्रांड वैल्यू में कोई पर्सन है तो नहीं दे सकता। सिंपल है, ऑडिटर खुद। सबजन मेरे पीछे मेरे तरफ देखो, सिंपल याद रखना, ऑडिटर बोलो, पहला ऑडिटर कौन, सबजन बोलो कौन, दूसरा पार्टनर, तीसरा रिलेटिव, चौथा इन्फ्लुएंस। चौथा क्या बोले एक बार उसे, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस में 3 लोग, इन्फ्लुएंस में क्या बोले एक बार 3 लोग, जिसका ऑडिटर पे इन्फ्लुएंस है वो, जिस पे ऑडिटर का इन्फ्लुएंस है वो, और जो ऑडिटर के ब्रांड वैल्यू के नीचे काम कर रहा है, जो ऑडिटर के ब्रांड वैल्यू के नीचे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सो एक बार चारों के चारों बोलो, सातों के सातों बोलो, क्या क्या है बोलो एक बार, ऑडिटर, पार्टनर, रिलेटिव और फिर इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस में जिसका ऑडिटर पे है, ऑडिटर का जिस पे है, और उसके ब्रांड नेम वाला। ये इंडिविजुअल को लगा, पार्टनरशिप फर्म के केस में ये पार्टनर्स को लगा दो, पार्टनरशिप फर्म के केस में किसको लगा दो, पार्टनर, तो आपका साइड वाला लिस्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है, एक बार वो लिस्ट देखिएगा, आपको समझ में आएगा इमीडिएटली। यही है सेक्शन 144 कि भाई साहब खुद भी नहीं दे सकते, खुद नहीं दोगे और किसी को देने भी नहीं दोगे, स्पेसिफाइड सर्विसेज। समझ में आया पक्का, रीड कर लो एक बार। डन, लिस्ट समझ में आई पक्का अच्छे से, बोलो हाँ है ना। बराबर 6-7 लोग आप याद रखो, आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस में 3 स्पेसिफिक याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 144। 145 है साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, सिंपली उसके अंदर बोला है ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेगा, साथ में बोला है कि ऑडिटर जनरल मीटिंग में रीड आउट करेगा कि उसके क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशंस क्या है। ये इसलिए क्योंकि फ्रॉड रिपोर्टिंग होना चाहिए, मैंने बोला था कि ऑडिटर को राइट मिलता है। ठीक है, वैसा ही तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का जनरल मीटिंग में, और उसने जो क्वालिफिकेशंस लिखे, जो प्रॉब्लम्स लिखे कंपनी के, वो रीड आउट करने। क्यों रीड आउट करने हैं, ये कुछ ऐसा सीन है, मेंबर ऐसे बीच में बैठे रहेंगे, एक साइड ऑडिटर रीड करेगा और दूसरी साइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खड़े होंगे। इधर ऑडिटर ने कोई क्वेश्चन रेज किया कि इस बार ना कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ और वो स्क्रैप में हुआ, तो मेंबर लगेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेंगे क्यों भाई क्यों ऐसा, फिर बोर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऑडिटर के हर क्वालिफिकेशन को बोर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऑडिटर ने लिखा क्यों, और फिर बोर्ड का अगर क्वालिफिकेशन सही है तो मेंबर ऑडिटर से पूछते हैं तूने पॉइंट रेज ही क्यों किया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो जुगलबंदी चलेगी। क्या चलेगी बोले एक बार, जुगलबंदी, मेंबर बैठ के मजे लेंगे क्योंकि पैसा उन्हीं का लगा है। समझ में आ रहा है पक्का, हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना, ये चीज को याद रखिएगा। सो अल्टीमेटली इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ फेस ऑफ बिटवीन द ऑडिटर्स एंड क्या बोले उसे मैनेजमेंट। सिंपली किसकी गलती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अब ढकेल नहीं पाएंगे, आमने सामने खड़े हैं, किसका प्रॉब्लम है एक्सेप्ट कर लो भाई,
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो ये सब ना। बस ये चीज बोली गई है, उसके बारे में मेंशन किया है 146 में। अब ऑब्वियसली जनरल मीटिंग में अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट रीड करना है तो जनरल मीटिंग का कम्युनिकेशन आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो एक बार 146 रीड करो, उसमें से इतना ही बोला है कि ऑडिटर को जनरल मीटिंग का हर कम्युनिकेशन दिया जाएगा। गो फॉर इट फास्ट। वन 145 146 दोनों कर लो। रीडिंग हो जाए, डन कर दीजिएगा प्लीज। ज़लका आगे बढ़े पक्का? चलो, सो यहां पे आपका होगा है 145 एंड कौन सा ब्लैक बार उसे 146। नेक्स्ट सेक्शन बचता है दैट इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑडिट चैप्टर। अगर आपने इस चैप्टर का कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपके साथ क्या हो सकता है? तो सीधा टेबल के ऊपर आ जाइए कि अगर आपने इस चैप्टर का कॉन्ट्रावेंशन किया तो क्या हो सकता है। कंपनी को स्ट्रेट अवे पेनल्टी बोली है जो कितना है 25,000 से लेके बोलो एक बार 5 लाख। ऑफिसर जो है उसको पेनल्टी बोला है 1 साल की जेल, 10,000 से लेके 1 लाख। पर जो ऑडिटर है उसकी तो लग गई। एक्चुअली ये सेक्शन अपने लिए बुरा है और इसकी पेनल्टी थोड़ी सी खतरनाक है, तो बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऑडिटर के पेनल्टी में 2 लिमिट्स है। एक अनइंटेंशनल ऑफेंस किया, अनइंटेंशनल ऑफेंस मतलब इच्छा नहीं थी फ्रॉड वॉर्ड करने की, हो गया, कुछ चीजें कर दी जो उसको लग रहा था सही थी पर एक्चुअली रिजल्ट गलत आ गया, सो अनइंटेंशनल ऑफेंस है। तो ऐसे केसेस में आपको 25,000 से लेके कितना लग सकता है 5 लाख और 4 मल्टीप्लाइड बाय रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। 4 मल्टीप्लाइड बाय रेम्यूनरेशन विच एवर इज का एक बार उसे लोअर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा रेम्यूनरेशन 1 लाख है तो तुम्हारी पेनल्टी कितनी हो सकती है 25,000 से लेके 5 लाख और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। 5 लाख और 4 मल्टीप्लाइड बाय रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर है ना, सो 5 लाख और 4 मल्टीप्लाइड बाय रेम्यूनरेशन जो कितना आएगा 4 लाख। तो आपकी पेनल्टी की रेंज होगी 25,000 से 4 लाख। इसमें से डिपार्टमेंट चूज करेगा कितनी देनी है, इसमें से डिपार्टमेंट बोलेगा कितनी लगानी है। और अगर इंटेंशनल ऑफेंस है तो ये एस्केलेट हो जाएगा तगड़े लेवल पे 25,000 25,000 टू 25 लाख और 8 मल्टीप्लाइड बाय रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। ठीक है, सो इट विल बी अगर आपका रेम्यूनरेशन 1 लाख है तो 50,000 बेसिक पेनल्टी से 25 लाख और 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, दैट इज टोटल कितना 8 लाख। विच एवर इज लोअर तो 8 लाख, तो पेनल्टी आपकी क्या होगी 50,000 टू 8 लाख विच एवर इज लोअर। खराब बात पेनल्टी नहीं है, खराब बात पेनल्टी नहीं है, खराब बात यह है कि डिपार्टमेंट को पता है वो किसके ऊपर पेनल्टी लगा रहा है। डिपार्टमेंट को मालूम है कि वो पेनल्टी लगा रहा है सीएस के ऊपर, सीएमएस के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट में भी सेम पेनल्टी है। वो उस डिपार्टमेंट को मालूम है स्टैट्यूटरी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट को पेनल्टी लगा रहा है। अरे हम ही तो वो लोग हैं जो लोगों को सजेस्ट करते हैं पेनल्टी से कैसे बचना है। बोलो हाँ है ना, तो हम खुद नहीं बच सकते क्या? तो हम खुद बच सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ने यहां पे भी घेरा डाल दिया है। तुमको ये पेनल्टी लगाने के बाद में
सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनली तुम्हारे पीछे एक आदमी को छोड़ेगा, एक पिल्लू को छू, और वो तुम्हारे पीछे लगा रहेगा जब तक कि तुमसे पेनल्टी वसूल नहीं करता है, तुम्हारे असेट को बेच के पेनल्टी वसूल नहीं करता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तुमसे तुम्हारे असेट से पेनल्टी वसूल नहीं करता। और सिर्फ ये पेनल्टी नहीं, ये सिर्फ पेनल्टी नहीं, इसके एडिशन में बोला है कि तुम्हारे इस ऑडिट रिपोर्ट के वजह से जिस भी इन्वेस्टर या शेयर होल्डर को मार्केट में लॉस हुआ है, वो लॉस भी तुम्हारे असेट में से रिकवर किया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है जीवन में, और ये सब रिकवरी के लिए बाकायदा एक डेडिकेटेड ऑफिसर दिन भर तुम्हारे पीछे वाह 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 वाह। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जब तक तुम्हारी असेट बेच के रिकवर नहीं करता, वो ऑफिसर तुम्हारे पीछे लगा रहेगा। ये है सेक्शन नंबर 147। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? जोर से बोलो यस सर, नो। किसी को चाहिए रीड कर लो, और ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है, कृपया इसको लिख लिख के रखिए, ये आपके बड़े काम में आएगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों को पेनल्टी समझ में नहीं आता, तो ये पेनल्टी लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट। हो गया पक्का? रीड कर लिया, लिख लिया सबने? डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना? आगे बढ़ो में पक्का? नेक्स्ट। अब ये अगर चीज आपका हो गया है, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाली सिचुएशन के ऊपर, जो नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट को थोड़ा सा आपको समझा दूं अच्छे से, फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो चैप्टर अपना क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। पहले तो कॉस्ट कहां लगती है? बेसिक कॉस्ट सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट का बाइफर्केशन नहीं होता। सर्विस सेक्टर कंपनी है, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है, तो कॉस्ट इज निग्लिजिबल, डायरेक्ट कॉस्ट इज बेसिकली बहुत कम होता है। पर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। सो कॉस्टिंग वाले मैटर्स या कॉस्ट ऑडिट वाले मैटर्स ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज या प्रोडक्शन एंटरप्राइज में ज्यादा होते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 70-80 पेजेस के रूल्स बनाए हैं, जिसके अंदर उसने सीजी ने मेंशन किया है कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जिनको कॉस्ट ऑडिट लगना चाहिए, और उन्हीं कंपनीज को सेक्शन 148 के हिसाब से कॉस्ट ऑडिट अप्लाई किया जाता है। और कॉस्ट ऑडिट उन कंपनीज को कंपलसरी करने के बाद कुछ प्रोविजंस का कंप्लायंस करना जरूरी है। जैसे पहला, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। कॉस्ट ऑडिटर एक तो सीए में होना चाहिए, पहला प्रायोरिटी फर्स्ट सीए में, और नहीं तो सीए चलेगा, पर यह पहले का प्रोविजन था कि सीए चलता था। अभी इसके ऊपर काफी डिस्प्यूट है कि सीए चलता है या नहीं चलता है, इट्स क्वाइट क्वेश्चनेबल थिंग, ठीक है? आईसीएमआई इंस्टीट्यूट कई बार इसके खिलाफ बोल चुका है कि नहीं चलेगा। कुछ केसेस में ऐसा माना जाता है कि चलेगा,
तो लोग क्या करते हैं कि भैया कॉस्ट ऑडिट के लिए सीएमएस अगर नहीं मिल रहा है तो उसको नॉर्मल ऑडिट या इंटरनल ऑडिट दिखा के सीएस को दे दे रहे हैं, तो ऐसे भी केसेस हो रहे हैं। सो अब वी डोंट नो कि एग्जैक्ट पिक्चर क्या है, बट नॉर्मली पहले ये होता था, ये बोल रहा हूं। जो रिपोर्ट है सीएमए का, कॉस्ट ऑडिटर का, वो पहले बोर्ड को देगा, बदले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको आगे सीजी को फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट ये रिकमेंडेशन किया, किसने किया है? सीजी ने। सीजी ने रिकमेंड किया है तो आपको रिपोर्ट सीजी को फॉरवर्ड करना जरूरी है। प्रोविजंस जो है सेक्शन नंबर 139 से लेके 147 के, नॉर्मल ऑडिट के, स्टैट्यूटरी ऑडिट के, वो सब कॉस्ट ऑडिटर को जैसे के वैसे अप्लाई होंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर का सब अपॉइंटमेंट, एक्सेप्ट फॉर ये वाला कि बोर्ड अपॉइंट करेगा, ये चीज छोड़ के बाकी जितने भी प्रोविजन है वो जैसे के वैसे अप्लाई होंगे। और सबसे आखिरी चीज, कॉस्ट ऑडिटर का रिमूवल या रेजिग्नेशन आप सेक्शन 140 के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, ये चीज कॉस्ट ऑडिट के लिए बोली गई है। इतनी ही कंटेंट हमें एज ए कॉर्पोरेट अदर लॉ में कॉस्ट ऑडिट के लिए काम का है। हालांकि कॉस्ट ऑडिट में बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, ठीक है, पर हमारे सिलेबस में इतना ही रखा हुआ है। समझ में? दिस जो सेक्शन नंबर 148, मैं चाहूंगा इसको कृपया एक बार लिख लीजिए, काम में आए। गो फॉर इट फास्ट। Done? लिखना हो गया बच्चों? डन एवरीबॉडी? हो गया पक्का? सीएजी फर्स्ट ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है बेटा। सीएजी फर्स्ट ऑडिटर को एज ए रेगुलर ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, चलो यहां पे आपका सेक्शन नंबर 148 कॉस्ट ऑडिट का भी होता है खत्म। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा ऑडिट चैप्टर खत्म होता है। इसी के साथ पूरा का पूरा कंपनी लॉ खत्म होता है। डिपॉजिट चैप्टर जो है उसके एग्जिस्टिंग लेक्चर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उसको स्लो करके फास्ट करके दोनों तरीके से देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ये लेक्चर इसके बाद में अपलोड हो जाएंगे। नहीं, रीजन इसलिए है क्योंकि मैंने फास्ट में, डिपॉजिट चैप्टर बहुत बेकार है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अंदर रूल्स 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 में ही इतना प्रपंचा करके रखा है और इंस्टीट्यूट रूल्स पे ही सवाल पूछ रही है। तो अगर मैं उसको फास्ट में पढ़ा दूं जमे ना तो, ठीक है, तो उससे अच्छा स्लो देके रखे हैं। तुमको अगर फास्ट ट्रैक में करना है तो स्पीड बढ़ा दो, खत्म बात। देखो स्लो को फास्ट किया जा सकता है, फास्ट को कैसे स्लो करोगे? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज के लिए याद रखिएगा। यहां पे आपका कंपनीज एक्ट पूरा होता है खत्म। कल से हम लेक्चर के ऊपर जाने वाले हैं, तो हमारे 3 टॉपिक हमको कवर करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरप्रिटेशन एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो विल ट्राई कि कल एक तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। इंटरप्रिटेशन तो काफी इजी है, मुझे ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए नियरली 1-2 लेक्चर्स, निगोशिएबल के लिए 1-2 लेक्चर्स, और इंटरप्रिटेशन के लिए तो हमें चार्ट में से ही सब लेक्चर कंटेंट टैली करना है। ठीक है, तो ये चीज को आपने याद रखिएगा। चलो ठीक है, आज के लिए फिर हम इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो बच्चों, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस।
बस जिंदगी में वही बाकी है अभी। एट लास्ट लैपटॉप हैंग हो गया, बहुत बढ़िया। गुड गॉड ब्लेस यू।